Namaskar friends, welcome to today's session of NEET admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about the expected date of NEET PG 2024 examination. And before starting today's video, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the videos regarding counseling, and we will upload videos regarding counseling, cutoff, fees and everything about counseling in coming days. So please subscribe the channel. So coming back to what today's topic, as a recent interview given by Mr. Bajpai, who is Vice President of National Board of Examination is going to get conducted within 1 month time, and dates will be disclosed as soon as possible. They have requested TCS to give dates as soon as possible, and as they will receive the date, NB will receive the date, they will officially announce it on NB website, and I think within 2-3 days the dates will come. But according to Mr. Bajpai as well as me also, examination will be conducted by last week of July or first week of August. So you are having 20-25 odd days time with you, so you can work hard, you can take benefit of this 20-25 days time, so that you add some more numbers in your score, and it will help you out in counseling process. So I would suggest you focus on your studies and don't believe on any rumors which are coming. You might have seen that post which is getting viral everywhere, that last week of August or mid of August. So I don't think that it is going to get delayed by last week of August. So by first week of August or last week of July, this examination is going to get conducted. So be assured with this particular thing, that last week of July or first week of August. Either it is on working day or it is on weekends. So that will be cleared in 2-3 days time. So just focus on your studies. I am just attaching that video clip of interview, and you can see that video also. That will clarify your doubts regarding NEET PG examination date. If you want to discuss regarding counseling, if you want to ask anything about your expected score, you can WhatsApp me on the given number, and you can call us on the given number. We will explain you all the possibilities. Thank you. के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड मेडिकल साइंसेस के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मीनू बाजपेयी सर हैं। सर, जो नीट की पीजी की परीक्षा है वो क्यों सर पोस्टपोन कर दी गई? आखिर उसके पीछे क्या रीजन था सर? देखिए, हम सभी लोगों को ये पता है कि दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं बहुत ही कम अंतराल में जो हुई, और उनमें कुछ ऐसे हादसे हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हुई, और उसके थोड़े ही दिन बाद चूंकि नीट की पीजी परीक्षा भी होने वाली थी, तो सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि अभी तक जो परीक्षाएं ठीक ठाक हो रही थी और दो लगातार एक के बाद एक दो हादसे हुए, तो ऐसा क्या हो रहा है कि परीक्षाओं में ऐसा चीज हो रही है। तो एक बहुत ही नेचुरल लॉजिक था कि बड़ी कोई परीक्षा होने वाली हो, उसको फिर से अवलोकन कर लिया जाए कि कहीं उसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो उन्होंने, चूंकि टाइम कम था और पिछला एग्जाम जिसमें ऐसा हादसा हुआ थोड़े ही दिन पहले हुआ था, तो नेचुरली बिल्कुल टाइम नहीं था, यही टाइम मिला कि रोक दो और इसको अवलोकन कर लो अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं है तो फिर होने दे, और कुछ है तो उसको ठीक कर लिया जाए। तो हम लोगों को तो तैयार थे, हमारे जो क्वेश्चन पेपर ही चंद घंटों पहले ही बनते हैं एग्जाम के पीरियड के, और हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। क्वेश्चन पेपर हम लोग जाके रिलीज करते हैं 2-3 घंटे पहले, सीधे सर्वर पे जाता है टाटा कंसल्टेंसी वालों को, वहां से बच्चों के कंप्यूटर पे चला जाता है पॉपुलेट होने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, और कभी 40 सालों में ऐसा हुआ भी नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ हो, कभी कोई मास चीटिंग का भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को तो जब ये बताया गया कि अब एग्जाम मत लें, तो एक हम लोग आश्चर्यचकित थे, किंतु चूंकि दो हादसे बड़े एग्जामों में हो चुके थे अपने ही देश में, तो हम लोगों ने तुरंत ही रोक भी लिया, और ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि शीर्ष लेवल पे ही निर्णय लिया गया था। और इसलिए हम तो सर, जब 23 जून को परीक्षा आपकी पोस्टपोन हुई, उसके बाद से अब तक सर क्या आप लोगों ने एक्स्ट्रा तैयारी की है इस ओर, और कौन कौन सी सर सरकारी संस्थान इसमें इन्वॉल्व हैं आपकी, किसके साथ में बैठक हुई है? क्या अभी तक लूपहोल कोई दिखे क्या? देखिए, ये शीर्षस्थ लेवल पे कैबिनेट इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है। अच्छा।
और रेगुलर इसकी मीटिंग होती है। हेल्थ सेक्रेटरी ब्रीफिंग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ जाके ब्रीफिंग करते हैं। हमारी जो प्रक्रियाएं, जैसे आपने पूछा क्या हैं, हमारी प्रक्रियाओं को देखा गया है। हमारी प्रक्रियाएं हमेशा सफल रही हैं। उनमें कोई संभावना निकल सकती है क्या, कोई और इसको हैक कर सकता है? क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसमें चूंकि साइबर क्राइम के हादसे पूरी दुनिया में हमेशा होते रहे हैं, तो हमारी शीर्षक एजेंसीज लाइक होम मिनिस्ट्री, उनके अपने सेल होते हैं इस चीज़ों के लिए, साइबर क्राइम इंटेलिजेंस सेल होती है उनकी साइबर क्राइम के लिए, और उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, और कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इसके लिए बड़ा विशिष्ट काम करती हैं। उन सब ने इन प्रक्रियाओं को देखा जो टाटा कंसल्टिंग सर्विस करती है, हमारे सर्वर्स के थ्रू हम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में करते हैं, उन्हीं का अवलोकन किया गया। अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं पाई गई है, वो सब आश्वस्त हैं, और एग्जाम भी जल्दी डेट अनाउंस हो जाएगी। चूंकि टाटा को 2,30,000 से ज्यादा बच्चों के लिए व्यवस्था करनी होती है, और अभी भी व्यवस्था हुई थी, तो दोबारा उन जगहों को फिर से बुक किया जाएगा, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही डेट आएगा, एग्जाम हो जाएगा, और डेट हम बहुत जल्दी डिक्लेयर अभी ही कर देंगे।